ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है जो तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। ओमिक्रॉन के साथ डेल्टा मिलकर डेलमिक्रॉन हो गया है। ये वायरस तेजी से म्यूटेट हो रहा है। देश में अब कोरोना के 24 घंटों में 2,64,202 नए मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 402 लोगों की जान जा चुकी है। कुल मिलाकर भारत में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,68,50,962 हो चुकी है, जिनमें से 4,85,752 लोग इस महामारी में अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में ओमिक्रॉन के ही अब तक 5,753 मामले सामने आ चुके हैं। बढ़ते वायरस के कहर से दुनिया के बड़े से बड़े देश भी खुद को नहीं बचा पा रहे। अमेरिका में कोरोना के नए मामले 6.5 करोड़ को पार कर गए हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा अमेरिका में 8 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं ब्राजील में यह वायरस अब तक 2 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है, जिसमें मरने वालों की संख्या 6 लाख पहुंच गई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की 50% से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले इन 3 देशों में ही हैं। वहीं ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस में भी ये आंकड़े 1 करोड़ से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण 30 करोड़ को पार कर गया है, जिसमें मरने वालों की संख्या 55 लाख पहुंच गई है। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था WHO भी इस वायरस को लेकर चेतावनी दे चुका है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल है। WHO की एक्सपर्ट मारिया ने चेतावनी दी है कि यह वायरस बेहद तेजी से फैल रहा है। उनका कहना है कि इस बात के सबूत पड़ रहे हैं कि वायरस हमारी इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है, इसलिए हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। Omicron, the latest variant of concern the WHO is tracking, has been detected around the world. It is efficiently transmitting, and in fact, everywhere where we have good sequencing, this variant is being detected. What we are seeing is a very sharp increase in case numbers. You will have noticed in the latest WHO update, almost 10 million cases reported in the last 7 days. There's a number of reasons for this. First is the mutations that it has. The virus is able to adhere to human cells more easily. It has mutations that allow it to do that. Second is that we have what is called immune escape, and this means that people can be reinfected. The other reason is that we are seeing replication of Omicron in the upper respiratory tract, and that's different from Delta and other variants, including the ancestral strain, which replicated in the lower respiratory tract in the lungs. And so these combination of factors allow the virus to spread more easily. With Omicron, what we are learning is that your risk of getting severe disease from Omicron is less than it is for Delta. But the sheer volume of cases that we are seeing around the world is really astonishing. And even with a lower risk of hospitalization, we're still seeing a large number of people who need clinical care, who are hospitalized, and that will overburden the system. What's really important right now is we do a couple of things. Number one, get vaccinated when it's your turn. Vaccinations are incredibly protective against severe disease and death, including against Omicron as well as Delta, where both of those variants are circulating. And so we really need to make sure that those who are most vulnerable in all countries get vaccinated. Second is that we need to make sure that we have good systems in place to detect, so good testing systems, getting people into the clinical care pathway so that they can receive the care that they need. And then everybody else has a responsibility as well to keep yourself safe. So adhere to measures that keep yourself safe. Wear a mask, keep yourself distanced, avoid large gatherings, and really if you could postpone some of those gatherings, do so. It's really important right now that we minimize exposure so that we can minimize those case numbers so that they don't have that knock-on effect of having a burdening of the healthcare system as well as other sectors. WHO की मारिया वान केरखोव बताती हैं कि अगर इस वायरस को हमने गंभीरता से नहीं लिया तो पूरी दुनिया एक बड़ी मुश्किल में पड़ सकती है। ओमिक्रॉन वायरस को डेल्टा वायरस से कम घातक माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ओमिक्रॉन सीधे हमारी लीवर पर असर डाल रहा है। ये लीवर के मुख्य सेल्स की एंजाइम्स की मात्रा को बढ़ा रहा है। कुछ मामलों में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, जिससे मौतें हो रही हैं। वहीं लेडी हार्डिंग की वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी समीक्षा जैन का कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हैं, उन पर इस वायरस का असर कम है। वहीं जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी हैं, उन्हें क्रिटिकल केयर के साथ आईसीयू में भर्ती होना पड़ रहा है। इसलिए ओमिक्रॉन को एक मामूली बीमारी मानना आपको मुश्किल में डाल सकता है। पब्लिक प्लेसेस पर जरूरत पड़ने पर ही जाएं। डबल मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सतर्क रहें।
कोविड प्रोटोकॉल्स को प्रॉपर फॉलो करें, क्योंकि इस जानलेवा वायरस से हमारी सतर्कता ही हमें बचा सकती है। इसलिए खुद सतर्क रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर अनलिमिटेड टीवी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।